LDA. Then we will go again. Uh, this is linear discriminant analysis. Last time you have seen that the PCA is a unsupervised learning. Okay, unsupervised learning. But when you are talking about the LDA, this is the supervised learning. So what is the difference? Anyone can tell me what is the difference between the unsupervised and supervised learning? Yes, Hajra, you can answer. Yes. Yes, what is the difference between supervised learning and unsupervised learning? In basically in supervised learning, we are providing the label along Yes, with the data. yeah, And unsupervised, there is no label, so it will be like a chatbot. very good. Very good. So you can say somehow the data is like that you have labeled. So I can say some data, that is the data. So you can say some data is class belongs to class C, C1, and some data that is belong to class C2. So now, as the name suggests, that is the linear discriminant analysis. Discriminant means anyone can tell me what is the means of that? Discriminant. What is the means common sense about this thing? Discriminant thing. Yeah, distinguish or different, you can say. Okay. Yeah, So difference you yeah, can yeah, say yeah, like good. discrimination. So we will find a thing. Find a thing. I am just using the word thing. So the class one and the class two will be differentiable. So maybe if you want to differentiate this class one and class two, you have to find out some decision boundary. So you can say this is the decision boundary. Yes. Okay, maybe the boundary will be like this. You are saying you are looking like this. It will be looking like this. It will be looking this. Will be looking like this. Any type of boundary will be there. But you can say, sir, these lines can can be the decision boundary. The classes are differentiable or discriminant. Yes. So we have to find out this type of thing. Okay. So how can we find out this type of thing? I am taking one example. Try to understand. So this example is related to just a face recognition. Okay, face recognition problem. Okay. So again, there is two classes. Means you can say this is Manish. Okay, the eyes हैं. This is nose and this is lips. Whatever. कुछ बाल बाल भी बना देता हूँ. Okay. Okay, and this is okay. I am taking example of Vishal. This is Vishal. या थोड़ा सा इसके. Yes. Okay. He's Vishal. Vishal and Manish. Now, first thing, I just want to find out the features thing. Already I have told you what may be the feature. Now the you can understand the feature like normally the features, if you are taking the example of human, you can say some nose may be the feature, the eyes may be the features, and this lips may be the features. Okay. So I am taking one example of nose. One feature I am taking that is the nose. Okay. So if the nose of Vishal and nose of Manish, that will be different. Different. If I am taking the pixel of this thing, if I am taking the pixel of this nose, that will be the different type of data. This is the Manish data. This is the Vishal data. Yes. And one thing I am also doing here, what I am doing, different. I am taking the picture of Manish or Vishal in different orientations. Orientations means first I am looking 90-degree straight, okay, or you can say in front, then I am tilting 75-degree, then I am tilting 65-degree. This face is tilting. So you have different type of data of Manish and different type of face data of Vishal. Yes, that part is clear. Yes. My example is clear till now. You are with me? Yes or Yes, no? Okay, good. yes, So what is happening? So you has the data of nose of different orientation and you have the data of Vishal different orientation. Vishal's data of different orientations. Yes. Now, now I am taking one thing. Okay, just by the graph, I just want to show this thing. Wait. Okay. So one class is this. This is the Manish data.
Okay, or you can say this is the M and this is the Visal's nose and some orientations data. Yes. Okay. Yes. In the last PCA, you have seen if I just want to project this data on this axis. Okay. This axis, I am projecting all the data on this. So from here to here, this data may be projected. Likewise, I am projected the data of Visal on this axis. So now you just tell me if I am projecting all the data of Vishal and Manish on this axis, is it means differentiable or discriminant? Yes or no? Just tell me. That much because it's overlapping. Some Yeah. of them is overlap. Some of them is Yes. overlap. Yes. Actually, very good. Very good. So you have two type of classes, and when you are projecting on the one axis, that is overlapping. Something is overlapping, so that you are unable to discriminate that data. Now I want to discriminate that data. So what should I do? Because I have the one thing you have already seen. You have one in the PCA you have learned about the eigenvector or eigenvalue. So I can take one vector. Okay, somehow one vector like this, or this will be go 90-degree like this. Again, if you are putting this data in this axis, this is not, you can say, differentiable or discriminant on this axis, this x dash. Okay, or I can change the name. This is u. If this is x, this is y. Okay, this data may be here only. इस डेटा को थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना रहा हूँ विशाल के डेटा को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे कहीं बना देता कि कुछ डेटा इस तरीके से है कि कुछ अगर इस एक्सेस पे भी करते तो ओवरलैप आता. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जस्ट आई एम पुटिंग दिस डेटा. मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज विशाल डेटा. नाउ इफ आई एम टेकिंग वन v vector, some axis vu, okay, and I am projecting this thing in this axis. So you can see the data is coming in this region from here to here. Okay, in the last class, what is the name of this thing? डेटा प्रोजेक्ट किया था और उसका नाम क्या दिया था मैंने? एनीवन कैन टेल मी प्लीज? इन द स्टैटिस्टिकल टर्म, what is the this thing? This is the spread thing here. Data you are spreading on some axis. What is the name of that part? Please remember the thing. That is the variance thing, na? Yes. So you can say, sir, the mean of this thing will come here somehow, some here, and the variance will be look like this. Wait. The variance will be look like this, sir. At the mean, the data is more spread, and otherwise this is spread like this thing. Yes, this is the variance of this data. Okay, please, everyone, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good, very good. Now I am coming second. Vishal's means is this, so you can put the mean will come here. Okay, the mean will come here, and somehow ये data थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ. The variance will be look like this. Okay, यहाँ से यहाँ तक इसका variance है. Yes, so this is the mean 2, this is the mean 1, and this is the variances. Okay, in this thing you can say, sir, if I am projecting this data on this axis, anyhow you can discriminate this part. Okay, when we are projecting this data on this axis, you are differentiate or you can discriminate the data thing. Yes. Yes. But two things are there. Try to understand. Two things are there. First is mean. So two concepts will come here on the basis of some stats. Some mean is there and some variance is there. Now try to understand what I just want to say. In the starting, what I am saying to you, okay, you have some orientation of the same person, different type of data. So you can say, sir, something is within. I am not telling you something you are doing in within the one picture. Okay, one data, one class, and something you are doing in between. Okay, when you are talking about Manish and Vishal, then you can say I am also talking about some in between. Yes.
So when I am talking about only one picture, I can say, sir, this is the within data. And when I am talking the two classes, I can say that is the in between thing. Yes. Okay, clear? Please let me know. Okay, मैं क्लास के बाद अभी क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद ही लूंगा. Okay. Yes. That part is clear to everyone. You are with me till now? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now I just want to tell you what is this within thing and what is the means of in between thing. Try to understand. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक intuition मुझे बताओ. अगर मुझे किसी चीज को दूर करना है, I just ask you a question. So if I am talking about the mean और इनके बीच में डिस्टेंस पास होना चाहिए मीन्स का, अगर मुझे डिस्क्रिमिनेट करना है दो चीजों को, अदरवाइज ये डेटा दूर होना चाहिए. मीन्स का डेटा मीन्स दूर होना चाहिए या पास होना चाहिए? ओके, वेरी गुड. यू आर सेइंग सर अगर मीन को मैं और दूर करूं तो मुझे लाइन बीच में और आसानी से मिल सकती है. ये मीन जितनी दूर होंगे, इफ आई एम मेकिंग फार द मीन, सो यू कैन से वी कैन मैक्सिमाइज द मीन. सर इफ आई एम एबल टू मैक्सिमाइज द मीन्स, so that will be okay for me. Yes, that part is clear. तो मैं डिस्क्रिमिनेंट बीच में एक डिसीजन बाउंड्री ले सकता हूँ. दैट विल बी इजियर टू फाइंड आउट द डिसीजन बाउंड्री. अगर मीन बहुत पास पास हैं, ऐसे मीन होते तो डिसीजन बाउंड्री डिसीजन लेना बहुत टफ होता है. यस, ये बहुत दूर दूर हैं तो डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करना बहुत आसान है. क्लियर हो? एवरीवन इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good. sir. Okay, now just tell me. So what is the means of maximum mean? When you're talking about the means, you will talk about the in between. So there will be the classes, more classes. So if the means of the classes will be far away or maximized, then you can discriminate the data easily. Yes? Everyone is clear on this point? Yes. So Yes, sir. whenever we are talking about the mean, you will think about the in between thing, means classes thing. एंड सेकेंड थिंग, अगर ये डेटा, चलो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ सेम ही जो ये था. अगर ये वेरिएंस देखो, वेरिएंस अगर मेरा यहाँ पे मेरा मीन था, टू मीन्स आर देयर. यस, दिस मीन एंड दिस मीन. सम वेरिएंस वाज लाइक दिस and some variance was like this. Okay, and we are try to find out this decision boundary. Now you just tell me, if this is spread, this variance is spread more, then the finding the decision boundary will be easier or means tough? If this will be more spread, ये मेरा variance ज्यादा होगा तो ये आसान होगा या कम होगा? टफ होगा सर. अच्छा, वेरिएंस बढ़ेगा तो अच्छा, टफ होगा. वी कैन तो ओवरलैप. टफ हो जाएगा ना. टफ हो जाएगा. टफ हो you are जाएगा. saying Overlap. yeah, you are saying finding the decision boundary will be tough. If you are thinking this part means I am saying if the variance will be look like this, कि सर अगर variance इस तरीके से दिख रहा है, जो white color से मैं दिखा रहा हूँ, okay, this is shrinking. If this will be shrinking, यहाँ तक variance है और ये छोटा variance यहाँ पे है, then finding the decision boundary will be easier for you. Yes or no? Yes, sir. So what you are Yes, saying, this time it sir, will be easier. yeah, very good. You are saying, sir, if we are minimizing the variance, okay, if we are minimizing the variance, then it will be more easier to find out the decision boundary in between these. तो डायग्राम आपका कैसा दिखेगा? ग्रीन कलर को मैं हटा देता हूँ. सो अभी स्पेस आपको ज्यादा दिख रहा है. ओके, देन आपका स्पेस आपको ज्यादा दिखेगा कि यहाँ पर डिसीजन बाउंड्री, ये जो डिसीजन लेना है आपको, ये आसानी से आप ले सकते हो कि कहीं भी लाइन खींच सकते हो. इज इट ओके? Everyone is clear on this point? यस सर. Sir. Very good. Okay. So two things are there. When I am talking about the mean, you have to maximize the mean. Okay, spelling change. Okay. When I am talking about the variance, again, I am talking about the variance, then you will talk about the within thing. Within means in the same data, variance you are finding the same. अब ये बताओ कि मेरे अगर मैं किसी भी ओरिएंटेशन से डेटा फाइंड आउट कर रहा हूँ अपनी नोज का, और वो उसका वेरिएंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा, डिफरेंट नहीं आ रहा, पास में ही आ रहा है, तो देखो मेरी नोज का वेरिएंस और इसकी नोज का वेरिएंस अगर श्रिंक होके विद इन क्लास में अगर पास पास ही है तो मैं उसको आराम से डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ. यस, अगर ये मेरा देखो, अगर मेरी नोज और
विशाल की नोज सिमिलर है, तो क्या है ये एक दूसरे में ओवरलैप भी कर जाएगा, मे बी ओवरलैप कर सकता है। यस तो लेकिन आपको फेस रिकॉग्निशन में अगर मैं कोई न्यू पिक्चर दे रहा हूं अपनी, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि मनीष है ये और ये विशाल है। विशाल नहीं है ये बोलना है, ये मनीष है ये विशाल है। तो आपके पास अगर एक ही फीचर है नोज का, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वेरिएंस जो है मेरी विद इन क्लास का वो श्रिंक रहे, बहुत पास में रहे, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। सो देयर आर टू फंडास यू कैन से, मिनिमाइज द वेरिएंस और maximize the mean. In the second term, you can say, in the term of the, you can say that is a term of the matrix form, you can say this is related to within thing and this is related to in between. Okay, so we can say this word like that is the in between scatter matrix. Okay, and you can say upon, I am writing upon this part within scatter matrix. Okay, and how can you represent this part डायरेक्टली? अभी मैं नाम कुछ भी देता हूँ, बिटवीन है तो इसको एस बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको एस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बिटवीन के लिए। ओके, विद इन, सॉरी विद इन के, सो दिस इज विद इन एंड दिस इज बिटवीन। सो यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस थिंग। देखो इस तरीके से मैंने लिखा, मिनिमाइज को अगर मैक्सिमाइज लिखना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, 1 अपॉन वेरिएंस। यस, everyone is with me? Yes. If I just want to minimum to maximum, so I can reciprocal this thing, means 1 upon variance. So I am writing the same thing. So you can say that is the SB upon SW. So I have to stop for one minute that recording, because someone is asking to meet me. That is the tough situation for me every time. So just 1 minute, I am coming out. Okay, so Okay, sir. I am not stopping the recording, just I am talking and sorry for disturbing here. Okay, so I am coming back. Okay, so what you have to do, you have to find out this maximum thing. Okay, or you can say in second term, what you are doing, you are finding the max of mean and you are finding the this thing variance. On the basis of that, this is the means, you can say this is the trick, or you can say this is the fundamental thing for the LDA to find out. After that, I will provide you the link. Just I have give you the interpretation. What is the geometrical interpretation? How can you discriminate the things? So this is the funda. When you maximize this thing, you will find some. Which thing you are finding again and again? You are finding this vector. Okay, so same thing you will do at the last. You will find like a PCA, you will find the eigenvector and eigenvalue, whatever the value is maximum. Okay, that vector you will take, so that will be your principal vector. Again, you can not say that's a principal vector, that max value will decide which vector is this. So on the basis of that, you will discriminate the thing. So the basic funda behind the story is this: you have to maximize the distance between the mean, and you have to shrink the variance. So this is the fundamental thing for the LDA. Okay, so for the derivation, I will provide the link of some link I will provide on the LMS. Clear? So you can attempt this part. अगर वो समझ में नहीं आएगा, then I will come to back किसी क्लास में वो भी करा दूंगा. So fundamental thing is clear. What should I want to say? That part is clear. Example समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो एक बार आप लोग, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर अटेम्प्ट करके देखना. Now I am coming back. That is the for you guys. That is the easier topic. Again, I am starting. You can say that is the what you think about. That is the machine learning. This is the regression thing.
ओके, सब लोगों ने किया होगा कहीं ना कहीं। किसको ये भी नहीं पता कि रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन किसी ने सुना ही नहीं वर्ड, ऐसा कोई है स्टूडेंट? प्लीज, Yes, sir. कोई है? यस, किसने Yes, कहा? sir. तो मैं थोड़ा सा, हाँ, Ajay Yadav, sir. थोड़ा हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, मैं देख समझ पाऊं कि Yes, sir. Thanks. कोई नहीं, इसमें फर्स्ट टाइम सीखने में कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई विल टेल अबाउट द एवरीथिंग। ओके, सम स्टूडेंट, किसी ने बोला था या अजय। अजय? ओके ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। So regression, again I am telling you. Okay, so when I am talking about the machine learning, every time I am telling about the data. Okay, so data, again, first thing is that is the supervised learning. Supervised learning, again, you can say some output will be attached or some label will be attached there. Okay, so data will be look like this, means some, I am taking the attributes x1, x2 or some output by. So some data will be here and the output will be, you can say this is the y's output, some output will be here. So whenever I am taking the first class, you know, every time I am telling about, you have to develop some model, and that model will be your machine learning model. Here, when I'm talking about the regression, you have to develop some model, mathematical model that represent this data, means whatever the data you will give, on the basis of that you will develop a mathematical model. How you are developed and what is that model? So I will tell about this one by one. So when I am talking about the regression word, regression is just a prediction. Okay, every time just remember, अभी मैं आपसे कहूं कि चलो एक एग्जांपल इजियर लेता हूं कि आपने देखा ही होगा, जैसे हम लोग जब ट्रेन की वेबसाइट को चेक करते हैं, तो मैं कहता हूं कि अभी आपकी ट्रेन 5 बजे, अगर कोई ट्रेन चलना स्टार्ट होती है दिल्ली से, तो 9 बजे वो कहाँ पे होगी? ओके, 9 o'clock वो कहाँ पे आ गई है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली ये कैसे हो रहा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मशीन लर्निंग में ये कैसे हो रहा होगा। बहुत बार रन की होगी ट्रेन, तो सम डेटा विल बी देयर कि आपके, हाँ, पिछले रिकॉर्ड में कि 5 बजे स्टार्ट हुई तो वो इतना किलोमीटर चली, या 6 बजे वो गाजियाबाद आ गई, उसके बाद 7 बजे वो जो भी अलीगढ़ पहुंची, उसके बाद जो भी है। ओके, 9 o'clock पे मान लो वो कानपुर पहुंच जाती है। ओके, लाइकवाइज ये आपका डेटा है, समथिंग इज दैट। ओके, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा कि करेक्ट इस पे नहीं पहुंची होगी, 8:40 पे कभी पहुंची होगी, कभी 9:50 पे पहुंची होगी। तो सम डेटा विल बी लुक लाइक दिस, 20-25 दिन का डेटा लिया, एंड देन डेटा विल बी लुक लाइक दिस, कि कभी समटाइम्स डेटा इस तरीके का है, समटाइम डेटा इस तरीके का है। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि 9 बजे ये कहाँ पे पहुंची चाहिए, 9 o'clock यहाँ पे, यहाँ से 5 बजे से स्टार्ट हुआ, तो यू कैन पुट सम वैल्यू हियर, यहां से किसी वैल्यू को उठा के आपको आंसर देना है, बट किस वैल्यू को उठा के आप आंसर दोगे? तो यू जस्ट ट्राई टू मेक सम मॉडल। तो मॉडल क्या हो सकता है कि आप इसको एक कर्व के थ्रू दिखाओ। कर्व कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी ए लीनियर लाइन, दैट मे बी ए समथिंग सम लाइक दिस, दैट मे बी लाइक दिस, और समथिंग अदर टाइप ऑफ कर्व। स्टार्टिंग में मैं कहता हूं कि वी आर गोइंग फॉर द लीनियर थिंग, कि एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन व्हाट यू विल डू, एट द 9 o'clock यू विल डू दिस पार्ट, एंड एट द बाई एक्सिस यू विल फाइंड कि वो कानपुर पहुंचेगी या उससे पहले होगी। यहाँ पे शहरों के नाम लिखे हुए हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं। इज इट ओके? सो यू हैव टू फाइंड आउट द मीन्स equation of that curve. I am using the word curve here, not line, because I am not saying that is the linear regression. I am just saying that is a regression. So maybe any type of curve is this. Yes. So you are fitting something, some data you are fitting in a curve. So that is the regression. Is it is clear to everyone? Everyone is clear on this point? Maybe sir. सबको पता होगा, या पढ़ाने का स्टाइल मेरा दूसरा हो सकता है, that part should be clear. Okay, so what you are doing in the regression, every time you are finding the prediction, what will happen at that point. Okay, so maybe different type of curve you will find. So first I can say some types of regression. So first you can say that is the simple linear regression. Okay, now I'm using word linear regression, linear word. Okay, second you can say that is the multiple linear regression, and third I can say some polynomial.
polynomial. When I am word using the polynomial, then you can't say that is the linear, or you can say linear. Okay, I will tell this story, but that is the polynomial regression. Is it okay? So I will teach you these three terms. That is a simple linear regression, multiple linear regression, and the polynomial linear regression. Is it okay? Till now you are with me? So Yes, in the layman term, I just want to make a difference कि आपको यहीं से अंतर दिखाई देना start हो जाए. So I just want to tell you, in the linear regression, what you are doing here, I am saying that is the supervised learning. So in the simple linear regression, only one input will be there and one output will be there. Yes, only one feature will be there. On the basis of that, the output will be attached or labeled with. Yes, in the multiple linear regression, what will happen? Some input will be more than one. Okay, so I can say that is the xn, and it will attach to some output. Yes, so that is the multiple linear regression. Okay, output will be more. In the real life, you will find this type of thing, not this type of things. But we will learn about this thing because when you understand कि एक feature पे कैसे work कर रहा है, you can go for the other features. Most of the time, if we are talking about, you will find this type of thing. Okay, what about this thing? When I am talking about कि आपका कि curve भी आ सकता है, that is not the linear thing. Okay, then I can say that is the polynomial regression. What will happen in this? So you will find some degree. That is the अगर data आपका x है, so you can find that is the degree of x1 x naught means x की power 0. That is the x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3, and we will decide कि इस डेटा को कैसे फिट करना है. ये पॉइंट्स जो हैं इसमें कैसे फिट करना है. So अगर डिग्री 3 है, then this data will be here and the output will be y. Maybe features more than one, so you can say one more name, that is the multiple polynomial regression. Then what will happen? If the degree is 3, one data is this, and second data, you can say this is x1, and second data will be x2 power 0, x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3. And this, all the 8 data will be attached to the y. So in the polynomial regression, this type of thing you will do. Yes. So 3 parts is clear. What will happen? I will teach you the mathematical intuitions and the representation. Other thing I will teach you, but till this time you are with me. What is happening? What is the means of regression? That part is clear. Everyone? Yes, sir. Please, yes, no, bol do. Okay. Yes, sir. Okay, Ajay, you are clear on this point? Yes, sir. Okay, good. So easier, I am taking one example again. Most of the time I am taking this example, CGPA. Okay, and some CGPA and some whatever the placement. Okay, in some lakhs or whatever. So I am writing this. Again, I am putting some 7.1, some random data. So this is 3.5, some 8.2, some 7 lakh. Okay, and 4.5, 2 lakhs, whatever. So I'm putting something 8.1, some data is 6.9, whatever. So this is the data. अच्छा, एक चीज बताओ. Now, just take one example I am taking, just asking you. अगर आपके पास ये CGPA का डेटा नहीं होता, just you have some this record. अगर मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेने को आया and मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ कितने का प्लेसमेंट हो जाता है, what is your intuition कि आप कैसे बताते हैं कि यहाँ पे कितने लाख का पैकेज हो जाता है या प्लेसमेंट हो जाता है? What is your intuition on this point? कैसे सोचते? Anyone? कॉमन सेंस है ये कि आप किसी कॉलेज में आपने किया ही होगा कि अगर अपनी कॉलेज में भी कोई आता है पूछने मैनेजमेंट में कि यहाँ पे कितना पैकेज है, कितना पैकेज मेरे स्टूडेंट का, मेरे बच्चे का लग जाएगा, तो व्हाट इज योर आंसर? या हम जो आंसर देते हैं वो क्या होता है? नॉर्मली एवरेज होता है, एवरेज सैलरी. क्या बोले? फिर से हाजरा, फिर से बोलो. एवरेज मतलब मीन वैल्यू जो आएगा. Yes, that is the average thing. What you are saying, sir, we most of the time we talk about the average thing. कि सर अगर मुझे ये वाला मुझे डेटा पता ही नहीं है, अभी मैं कट कर देता हूँ कि I know only the output कि ये मेरा प्लेसमेंट है, these are the my placement, so what should be the
average thing, that will be my placement. Now I am putting one more feature. Now try to understand कि अब एक बच्चा आता है आपके पास कि इतना CGPI है, तो फर्स्ट आंसर आपका इंट्यूशन ये आपका देखो सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट थिंग इज एवरेज. When you have only the one feature and one thing, nothing, no features, and something is asking you bluntly, you can say that you can take the average and you can answer this thing. Okay, so first regression thing तो यही हो गया कि average एक अपने आप में एक regression ही है. Okay, so because you are predicting again. Okay, so average thing you are telling about. Second thing, when you are putting one feature, okay, when you are putting some feature, then you can relate the thing. You have to find out some model. ओके, अब आपको एक मॉडल फाइंड आउट करना है. अगेन यू विल ड्रॉ ए डेटा. इस डेटा को आप ड्रॉ करोगे, जो भी आपके पास डेटा आया, यू कैन ड्रॉ दिस डेटा. अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, most of the time what you are doing, you will find a line equation. So line equation means this is the mx plus c. Here what is the x? X is this CGPA, and what is the placement? So I can write this is by in capital. So this is y. Yes, this is the output. Everyone is with me? Okay. Yes, sir. So this Yes, placement, yeah, placement is y and this is x. So this is your dependent or independent feature? Just now tell me. Dependent, sir. Independent. X is dependent. And Y this is is Dependent. this is dependent or independent? Yes or no? Y is dependent. Y is sir. dependent feature. Y is dependent Yes, on yes. X. This is dependent Y is and dependent this on is X. this is And X is independent. independent. X Okay, is independent. Yes, because on the x means whatever you will get, that value will come throughout the y. So that is the independent and this is the dependent variable. Most of the time when you will learn from the literature, the many books write like this: relation is the relation between the independent variable and the dependent variable. So you have to know what is the independent variable and dependent variable. That part is clear? Okay, so I can take this is y, this is x, and now which term is remaining? Just tell me. This m is remaining. You know that is the slope and this is the y-intercept. Means by the model, this part is given to you, this part is given to you. Which part you have to find out? This m and c value you have to find out. This is the thing. Yes. In every machine learning problem, the data will be that data will be given to you. You have to find some parameters. So these are some parameters you have to find. So some technique you will apply and after that you will find this is the line. Okay. So some equation I can write, this is the y is equal to something 3x plus 2, something I can write. So the value of m is 3 and the value of c is 2. Yes. So you have to find out these value. Now, whatever the value, if the test data will come to you, means I can find means 7.6 CGPA. What should be the value? You will put the value of x here and you can say that this will be your placement value. Means this will be your package after means means यहाँ पे आपके admission के बाद whatever. So this is the prediction. Okay. So you have to find out this equation, this equation of line. Now I just want to make one thing here. यहाँ पे मुझे बताओ कि this is one line, this is second line, this is third line. All the answers may be here. कि ये सभी आंसर हो सकते हैं इस इक्वेशन के इस डेटा पे क्योंकि सभी फिट हो रहे हैं. Yes. So one thing is that you have to find out the best fit line. Best fit line. So in the simple linear regression, what you are trying to find out, that best fit line you are trying to find out. How you can say that is the best fit line? क्योंकि common sense से मुझे बताओ what is the means of that? Best fit line का मतलब क्या होगा? कोई भी? So which line actually gives the best means the maximum number of points will be aligned to that line itself. Yes, very good, very good. Most of the means every point, I can say every point or the most of the point should be aligned to this, or you can say at the minimum distance. Okay, so that will be the best fit line. Yes,
or you can say in that error term, you can say the error will be either that will be 0 or either that will be minimum. 0 वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज एवरी टाइम दैट अगर 0 हो जाएगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मशीन लर्निंग को, क्योंकि वो सीधा डेटा ये होगा, ये पॉइंट है और ये लाइन इससे जा रही है. सो मैथमेटिक्स से यू कैन फाइंड आउट कि 3 लाइनें, 4 लाइन, 5 लाइनें, 5 पॉइंट है, उनसे कोई अगर डेटा निकल रहा है, कोई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, वो मैथमेटिक्स में भी कर सकते हो. बट हियर सम डेटा इज डिफरेंट टाइप, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम एरर हियर. On the basis of that, you can say that is the best fit line. So this best fit line will be your simple linear regression equation or line. Yes, that part is clear to everyone. Please. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहां तक अगर क्लियर है तो देखो, नाउ यू नो कि सर बेस्ट फिट लाइन को मुझे ढूंढना है जो भी आपका डेटा दिया हुआ है. यस, तो देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट दिस बेस्ट फिट लाइन. फर्स्ट, मैंने एरर पहले ही बताया था कि एरर क्या होता है. एनीवन कैन टेल मी? अगर देखो मैं yes, very good. So every time what is happening when I am writing the model like this, okay, this is the predicted value because y is given to you. Okay, you are putting some x because you are finding this value m and c. On the basis of that you are finding, so this is the predicted value and this is the predicted one and the actual one is given to you in the data. So when you are taking the difference between the actual and predicted one, that will be, I am writing not this mod. So this will be your error. Everyone is with me? Yeah, this will be your error. Yes, sir. Okay, good. So finding this thing means how you will find this value m and c. There are two ways. One way is you can say, one way I can write here, that one way is directly use the formula or formulation. And second way is you can go for the gradient descent way. Okay, gradient descent, by the gradient descent. Okay, now you can take one thing, sir, if formula is there. So formula में यहाँ पे लिख देता हूँ कि m का फॉर्मूला क्या निकल के आता है. मैं डेरिवेशन अभी बाद में दिखा दूंगा या बता दूंगा. m का फॉर्मूला निकल के आता है, that is your y bar into something is, sorry, b का, so not m. First I am writing this is b. This b is equal to y bar, this is by mean, that is m, and this is x bar means x mean. Okay, and b को कैसे, m को कैसे निकालते हैं? First we will find the value of m. So something like that, this is xi के आपका डेटा दिया हो minus x bar, yi minus y bar, okay, and upon xi minus x bar का whole square. और आपका डेटा अगर 1 से लेके n तक है तो we can write here that is summation of I is equal to 1 to n. On the basis of these two formulation, you can find the value of m and you can find the value of y. Most of the time when you are using the sklearn library in the machine learning, you are using this formulation. And if you don't want to use this type of thing, you can use the SGD regression. Then you can go for the gradient descent method. Okay, ये मैं आपकी programming की बात बता रहा हूँ. Regressor. When you are using the SGD regressor, the formulation of that problem, the answer will come, m of b will on the basis of gradient descent. And when you are directly using the library of sklearn, the linear regression library, that this formulation will be there. Yes, okay, everyone? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. चलो, तो अभी इसका देखो मैं पूरा डेरिवेशन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कर रहे होंगे. सो सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि आपका पैकेज इस पे है, थोड़ी कम वैल्यू में ही दिखा देता हूँ कि आपने क्या किया कि सम डेटा इज लुक लाइक दिस. एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपको दिखेगा शायद. चलो, ये कुछ डेटा था. ओके, नाउ व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये पैकेज है आपका and this is your this is CGPI. Now what is happening, you are trying to make a best fit line.
आपने पहले एक इंट्यूशन से एक लाइन बना दी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समथिंग यू आर टेकिंग m and b whatever. Now you are trying to find out the error. Error is this. Actual इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, ये डायरेक्टली ऐसे होगा. When you are taking the data at this point x1, what is the answer? This is the answer, actual answer जो आपको यहाँ से मिलेगा. But prediction के बाद आपका आंसर यहाँ पे आया है, ये एक्चुअल आंसर ये है और प्रिडिक्शन के बाद आपका आंसर ये आ रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस. दिस डिफरेंस इज द D1 में अभी बोल देता हूँ. दिस डिफरेंस इज द D1. क्लियर? सो दिस इज द एरर और E1 बोल देता हूँ. D1 नहीं बोलता हूँ, D1. ओके, दिस इज द E1 फर्स्ट एरर. सेकंड आप यहाँ से लोगे, दिस इज द थिंग. एक्चुअल डेटा यहाँ पे था बट प्रिडिक्शन के बाद यहाँ पे आया, तो सम एरर विल बी देयर. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड ऑल द एरर्स. तो हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ, इन पॉइंट्स पे जीरो एरर है. मान लो यहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट वहीं से जा रहा है, तो इसकी एरर जीरो आ जाएगी. बट यू कैन राइट E1 प्लस E2 जितने पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स यू कैन टेक. So some endpoints will be there and you can add all the points E1 to En. This will be your whole error. Yes? Yes? Everyone is okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. But now I just want to tell you, most of the time you have do one thing. You can take the square of the error. Why we are doing this thing? Anyone can tell me? Because if the error is too Yes. small, then we can increase it. No, not for small. I am saying because some error is what will happen. Some error is positive, some error is negative. So maybe Yeah, so we every can error get will it positive. nullify to each other. First reason is this. Second reason is you can say most of the time we have to differentiate the equations. So you have to take the square. Okay. और आप कह सकते हो कि सर आप मॉड ले सकते थे. ओके, सम, क्योंकि एरर तो आपका समथिंग इज लाइक दैट, y माइनस y बार आ रहा है ना. ओके, यू कैन टेक द मॉड, बट एवरी टाइम यू नो at the 0 point the mod is not differentiable. Okay, at this point. So we mostly use this type of square of thing. Square के बारे में मैं बताऊंगा कि फायदा क्या होता है. Yes? Yes, everyone is okay? Yeah? Okay. Yes, So sir. we can write this thing in the equation. You can say, sir, I can write this thing like this is I is equal to 1 to n and this is EI square. You can write the thing is like that. Yes. And EI you can write like, sir, I can write the EI like that is the y minus yi minus y bar. Okay. So this, sorry, y cap, not bar, yi cap whole square. This will be the part. Everyone is okay with me? Yes. Okay. Now y bar की इक्वेशन अभी मैं लास्ट लिखा था आपका, every time y bar is equal to mx plus c. So in this equation you can put mxi plus c. So equation will be look like this. This will be I is equal to 1 to n and this will be yi minus something mxi plus c, that is the whole square. और माइनस को मैं अंदर कर दूं तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा. सो दिस विल बी द इक्वेशन. यस. अब नाउ यू जस्ट टेल मी, मैंने क्या बोला था कि you just want that error will be minimum or you have to find out the best fit line. Yes, in the starting or the intuition part I have taken this thing and now you have the error equation. This is the error और ये error किस पे dependent अब है. Now you can say this error is, क्योंकि दो ही चीज यहाँ पे हैं जो आपके पास नहीं है. This is the equation, this is variable m and c. So you can say this is depend on m and c. इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और यू कैन से इनमें जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एरर आएगा. इज दिस ओके? तो दिस इज द इक्वेशन. अब मुझे इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, ये बताओ, बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए. Minimize करना. Minimize. Very good. So you can say, sir, if I will minimize this equation, then I will find out the what will be the value. और value कैसे find out करते हैं minimize करके? You know the basic mathematics की derivation लेते हैं, उसको जीरो की इक्वल कर देते हैं. अगर आपका ऐसा कर्व होता है, ठीक है, अगर मुझे ये मिनिमाइज निकालना है तो हम लोग कैसे डेरिवेशन करते हैं इसको और इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं कि स्लोप यहाँ पे जीरो हो रहा है, दैट विल बी द मिनिमम पॉइंट. चलो इसको भी इंट्यूशन से मैं आपको शो करता हूँ. ये इक्वेशन याद रखना. एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग. चलो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ.
तो आपके एक बार और समझ में आएगा। अच्छा, बीच में गायब तो नहीं हो जाते बाकी के लोग कि मैं बोलता रहता हूँ कि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे? बीच में केवल हाजरा बोल रहा है, एक दो लोग और बोल रहे हैं। बीच में बोलते रहा करो सर, कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ भी लिया करो। माइनस बी दैट इज द होल स्क्वायर, मैंने वो चेंज कर दिया, माइनस को अंदर पहुंचा दिया। दिस इज द इक्वेशन। नाउ आई एम टेलिंग कि आपके पास एम और सी दो चीजें हैं। अच्छा, मैं करता हूं, पहले क्या करता हूं, बी को 0 कर देता हूं। ओके, कुछ डेटा मेरे पास इस टाइप का है, कुछ डेटा ये रखा हुआ है, बी को मैंने 0 कर दिया है। अब मुझे बताओ इक्वेशन में क्या इक्वेशन रह गई? सॉरी, बी नहीं, ये सी था, बी लिख लेता हूं या सी लिख लेता हूं, कोई भी, बी लिख दिया अगर। ठीक है, तो मेरे पास ई एम रह गया, दैट इज वाई आई माइनस एम एक्स आई होल स्क्वायर। ये रह गई इक्वेशन, यस और नो? Yes. Yes. यस। Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बी का मतलब? मुझे बताओ, बी अगर मैंने 0 ले लिया तो एवरी टाइम द लाइन विल गोज थ्रू आउट द ओरिजिन, यस? ये मेरे Yes. पास एक्स है, ये वाई है। एंड अगर m को, मान लो ये स्लोप m की वैल्यू यहाँ पर 10 है, अब मैं m की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 10 से 11 कर रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा डेटा, लेकिन Yes, आपका ओरिजिन से नहीं हटेगा ना। अगर मैं इसको 15 कर रहा हूँ तो Origin से नहीं समहाउ हटेगा। दैट, हाँ, ओरिजिन से नहीं हटेगा, डेटा विल बी लुक लाइक दिस। नहीं। अगर मैं इसे 20 कर रहा हूँ Yeah. तो समथिंग लाइक लाइन विल बी गो लाइक दिस। तो क्या है, लाइन आपकी मूव कर रही है, आपका बी 0 होने की वजह से क्या हो रहा है कि समथिंग यू कैन रोटेट द लाइन ओनली। ओके, यही तो हो रहा था कि आपकी एक लाइन ये आई और रोटेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एम की वैल्यू पे, बट आपकी ये फिक्स हो जाएगी वैल्यू। क्लियर? Origin fix हो एवरीवन इज जाएगा। क्लियर? यस, ओरिजिन फिक्स Origin will be रहेगा। 0 0. Yeah. यस यस, वेरी गुड। सो दिस इज हैपनिंग, ओके, कि आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइन आपको इस तरीके से मिल सकती हैं एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, लेकिन ओरिजिन आपका फिक्स रहेगा। ये तो एक इंट्यूशन हो गया। अब इसको मैं इस ग्राफ में शो करके दिखा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं बताना चाहता हूं उसको समझना कि क्या है। फिर से मैं इसको फिर से ले रहा हूं। स्टार्टिंग में क्या है कि आपका डेटा ये है और इस m की वैल्यू को मैं फिक्स कर रहा हूं 10, मान लिया 10। ठीक है, अगर डेटा को कुछ 10 यहाँ पे है, ओके, 10 यहाँ पे आ गया, या 10 मतलब अभी इसको 10 ही ले लिया, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10 ले लिया मैंने, 10 की वैल्यू पे डेटा यहाँ पे कुछ आया, m की वैल्यू 10 है, ये m इज इक्वल टू 10 पे है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो m इज इक्वल टू 11, यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा डेटा, यहाँ कुछ मिलेगा, m इज इक्वल टू 12 13 14 रोटेट होता रहेगा, डेटा ऊपर जा रहा है, यस। अगर इसके नीचे वाले डेटा को देखूं तो m डाउन हो रहा है, तो आपका डेटा कुछ x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यू विल फाइंड, जस्ट ए मिनट, y की वैल्यू कैसे हो रही है वो समझने की कोशिश करना। ये मैं थोड़ा सा फिर से देखता हूँ, मैं एग्जांपल गलत ले रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अगर नंबर लेता तो ज्यादा बेटर। एनीवेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है कि m की वैल्यू पे ये डेटा आपका फिट था, मान के चलो कि फिट था अभी m इज इक्वल टू 10 पे, तो ये सबसे कम एरर था यहाँ पे। उसके बाद m इज इक्वल टू 11 पे क्या हो रहा है, y की जो वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, y की वैल्यू अगर इसको मैं इस तरीके से लूँ, ये वाला डेटा जा रहा है, ठीक, तो y की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, जैसे अगर यहाँ पे डेटा लाए तो एरर मेरा किस तरफ जा रहा है, एरर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस पॉइंट से एरर ज्यादा बढ़ने लगेगी, यस और नो? जैसे m को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, डेटा Yes, से sir. बाहर जा रहा है तो एरर बढ़ती रहेगी, यस, तो एरर इस तरीके से बढ़ रही है। Yes. सेम यहाँ देखो कि डेटा को मैं इस तरफ नीचे लेके आ रहा हूँ लाइंस को, तो एक बार आपकी थोड़ी सी डाउन जाएगी और फिर से एरर बढ़ना स्टार्ट होगी, तो कुछ आपका कर्व इस तरीके के निकल के आता है, यस, एरर के साथ। So some parabolic curve you will find at this point, the curve will be, the answer will be minimum। मैंने सेम एग्जांपल, मैंने कुछ और पॉइंट नहीं उठाए, आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैंने 10 से ही स्टार्ट किया, तो m इज इक्वल टू 10 पे आपका स्लोप क्या 0 आ रहा है, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है, यस। Yes, sir. सो Like एवरी a टाइम global देखो minimum. ग्रेडियंट, यस,
इन एवरी टाइम इन द ग्रेडियंट डिसेंट यू हैव फाइंड कि ये वाला पॉइंट ही ढूंढना होता है। यहाँ पे हम अप्रोच उल्टी करके ले रहे हैं कि इस पॉइंट को हमें ढूंढ रहे हैं, डेरिवेशन से करके ले रहे हैं, बट मैंने एक इंट्यूशन दिखाया कि b की वैल्यू को 0 करके आप इसको सर्च करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो यू विल फाइंड सम पैराबोलिक कर्व विल बी कमिंग। सेम यहाँ पे कर सकते हो, दूसरा इंट्यूशन ले सकते हो, m इज इक्वल टू 1 कर दो, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई बी इज इक्वल टू समथिंग दिस समीशन बाई आई माइनस एक्स आई, okay, and minus b. So what is happening here now? अब अगर m मेरा 1 है तो वो फिक्स हो गया, स्लोप आपका 1 है, कोई एक स्लोप 1 ले लिया मैंने। नाउ यू कैन शिफ्ट ओनली दिस पार्ट, ओके, आपका स्लोप सेम रहेगा, यू कैन शिफ्ट ओनली दिस पार्ट। जो लाइन मान लो डेटा ये था, जैसे इसके बाहर जाएगा देन एरर विल बी इंक्रीजिंग, इसके बाहर जाएगा एरर विल बी इंक्रीजिंग, ओनली फिट लाइन पे आपका क्या होगा, एरर सबसे कम होगा। So again some parabolic relation will come. Okay, so again and again on the both of the axis you have to find. तो एक आपके दो वेरिएबल हैं, तो केवल आप नॉर्मल डेरिवेशन करके नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, यू हैव टू फाइंड आउट दिस डेल ई एम बी, दोनों ही ले लेता हूं, अपॉन डेल एम यू विल पुट इज इक्वल टू 0, एंड दूसरे वेरिएबल के साथ भी आप लोग ये इक्वेशन को डील करोगे, दिस डेल बी इज इक्वल टू यू विल पुट 0। इन दोनों को जब 0 के इक्वल रखोगे तो इससे आपकी m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और इससे आपकी b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इज दिस ओके? I just want to give you the geometrical representation or intuition, that's why I am showing this part. क्लियर है? वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप लोग फाइंड आउट करोगे, किसी भी कहीं कोई भी बुक देखोगे, यू विल फाइंड दिस डेरिवेशन, सो यू कैन फाइंड। आई एम नॉट टीचिंग दैट पार्ट, जस्ट आपको एक क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग दिस पार्ट। और दो बार वेरिएबल में दो अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हियर यू आर फिक्सिंग सम बी, हियर यू आर फिक्सिंग सम एम। यस, सो मैंने वही फिक्स किया था, यहाँ पे बी को फिक्स किया, यहाँ को m को फिक्स किया, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग, जब 0 रख देते हो इसको, सो यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यू, यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यू। दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes sir. तो Yes, ये sir. अगेन कोई भी बुक या कोई भी आप चीज देख लोगे, कहीं से मैं भी भेज दूंगा आपको, यू कैन फाइंड दिस डेरिवेशन, मैं वो डेरिवेशन कराने नहीं जा रहा हूँ। इज इट ओके? ओके, सो दिस इज द मैथम, Yes, sir. सो यहाँ के बाद मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस एम बी डेल एम इज इक्वल टू 0। क्या हुआ? म्यूट कर दूं? सर मस्ती नहीं। एक्चुअली वो दो माइक ऑन था तो इको हो रहा है इसीलिए। मेरा किसी और का माइक से इको हो रहा है, आई थिंक। नहीं आपका नहीं है, हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे भूपेंद्र का माइक से इको हो रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, so by this you will find the value of m and by this you will find the value of b. अगेन वो वैल्यू मैं आपको शो कर चुका हूँ, ये आंसर ये जनरेट होगा और यहाँ से ये वाला आंसर जनरेट होके आएगा। इज दिस ओके? ओके, सो व्हाट इज द बिहाइंड द स्टोरी, कि वो क्यों हो रहा था, कैसे हम फिक्स कर रहे हैं, वो मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता था। बिकॉज बाकी तो रिग्रेशन मैं सीधा बोल सकता था कि एरर फाइंड आउट करो, जस्ट टेक द डेरिवेशन एंड दैट इज क्लियर, बट व्हाट इज द थिंग इज बिहाइंड द पिक्चर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? यस? Yes, नाउ yes, sir. एक क्वेश्चन किसी का हो सकता है कि ये सर सिंपल रिग्रेशन था, तो एक वेरिएबल में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, ओके, फॉर्मूला यूज करके। बट व्हेन वी आर टॉकिंग कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग फॉर द जीडी थिंग, gradient descent. When the more features are there, most of the time we will go for the GD. Otherwise, अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल बढ़ाऊंगा और इक्वेशंस को यूज करूंगा, दैट विल समहाउ, दैट इज डिफिकल्ट थिंग। सो ग्रेडियंट डिसेंट उसको आसानी से डील कर लेता है, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल टीच दिस थिंग थ्रू आउट द जीडी, कि जीडी को सॉल्व करके ये आंसर हम लोगों को जनरेट करते हैं। इज इट ओके? क्लियर है? Yes sir. Okay, very good. Now, before going for the multiple regression, somehow I just want to make you some parameters, or you can say some efficiency parameter or regression matrices. Okay, the name is regression. बहुत लोग जानते भी होंगे, again, matrices, or some you can say these are the evaluation parameter or regression evaluation parameters.
तो यहाँ पे मैं 5 पैरामीटर आपको पढ़ाऊंगा. फर्स्ट इज दैट इज द MAE, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, एब्सोल्यूट एरर. ओके, सेकंड थिंग मीन स्क्वायर्ड एरर. अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, दैट इज द स्क्वायर्ड. ओके, मीन स्क्वायर्ड एरर. थर्ड इज RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. Okay. Fourth is R2 square, R2 score. And fifth, you can say some adjusted R2 score. So we can, after developing a model, we can go for this evaluation parameter कि हमारे जो लाइन की इक्वेशन निकल के आई है वो कितना efficient है, कितना एरर कितना दे रही है, एक्यूरेसी उसकी कितनी है. ऑन द वी विल फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर. एक दो पैरामीटर और हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दीज पैरामीटर फर्स्ट, देन वी विल गो कि वो कहीं ना कहीं पे आ जाएंगे वो पैरामीटर्स, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे. उसके बीच में कुछ और टर्म, रेगुलराइजेशन एंड अदर थिंग विल कम. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द MAE, दैट इज, कोई बताएगा मुझे MAE क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर. अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर ये रिग्रेशन लाइन है, यहाँ कोई डेटा था इस तरीके से, तो यू आर फाइंडिंग दिस एरर. ओके, दीज आर द एरर्स. Okay, this is y prediction or this is y. Okay, so you will find the difference between some y minus y prediction. Okay, and you are taking the absolute value. पहले अगर इसकी वैल्यू लूं तो y1 कर दे रहा हूँ, प्लस सेकंड एरर की वैल्यू लेता हूँ, देन y2 माइनस y2 कैप. ओके, थर्ड की वैल्यू लेता हूँ तो y3 माइनस y कैप, एंड फोर्थ वैल्यू लेता हूँ एंड सो ऑन. So you can say when you are taking the absolute thing, यहाँ पे देखो मैंने स्क्वायर नहीं किया है. Okay, then you can say that is the mean absolute error. If you are taking only the mod thing, you are taking the positive part only. So you can say that is the mean absolute error. What is the advantage? Now we will talk about the advantage or disadvantage of every evaluation parameter. अगर एक ही पैरामीटर सही होता तो हमें दूसरे पैरामीटर की जरूरत ही नहीं होती. तो इसमें कुछ एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? फर्स्ट एडवांटेज यू कैन सी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया CGPI का, और यहाँ पे था प्लेस्ड पैकेज का, वो कितने लाख का है. तो यूनिट, इफ यू आर फाइंडिंग द एरर यूनिट विल बी द सेम. कि अगर मैं बोलूंगा तो वो लैक्स में ही आप बताओगे कि सर इतने लैक्स का एरर आ रहा है. ओके, yes, this part is clear to you. Okay, second thing, Yes. when you are talking about the outliers के बारे में मैंने पिछली कहानी बताई थी. When you are talking about the outliers, this method is more robust. अभी मैं बताऊंगा इस robust का मतलब क्या है. If I am taking this is the outlier, मान लो कुछ दूरी पे कर देता हूं, then the error will be this. Okay, some error E5 में मान लेता हूं, this error will be the outlier. So I'm taking that is the more robust thing when you are dealing with outliers, कि मैं इस तरीके की एरर का यूज करूंगा, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा सेकंड, जब स्क्वायर एरर दिखाऊंगा, देन यू विल सी दिस एरर विल बी इंक्रीज्ड इन दैट पार्ट. वहां पे हमें डील करना बहुत टफ हो जाता है. तो अगर मेरे सिस्टम में ज्यादा आउटलायर्स हैं, देन वी कैन गो फॉर द मीन एब्सोल्यूट एरर. अब डिसएडवांटेज क्या है, ये तो मैंने अभी बताया. कोई मुझे बताया जल्दी से इसका डिसएडवांटेज, कई बार बता चुका हूं. प्लीज प्लीज प्लीज, ये वाले ग्राफ को फिर से बनाता हूं, प्लीज अब बता दो. जब भी आप मॉड ले रहे हो किसी भी वैल्यू का, एट द 0 पॉइंट दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो 0 पॉइंट में तो टाइम वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना. 0 पॉइंट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. यस, वो डिफरेंशिएबल नहीं है. एट द 0 पॉइंट दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द व्हेन यू आर डेरिवेट दिस थिंग, दिस इज नॉट क्लियर. मीन्स उसका कोई डेरिवेशन निकल के डेरिवेट नहीं कर सकते उस एरर को. दैट इज द मीन्स डिसएडवांटेज. सो यू कांट डेरिवेट दिस थिंग at 0. Okay, so you can't take the decision at 0. Clear? So this is the disadvantage. अगर इस disadvantage को मैंने किसके थ्रू सही किया था, मैंने इस एरर को हमेशा क्या किया, क्या बनाया था, आप बताओ जल्दी से.
स्क्वायर बन किया रहा है. था, square किया. Okay, so that is the thing. Now I am coming for reducing this disadvantage. This mean square error is coming. Mean squared. So again, this is the thing plus by 2 minus whatever the by cap. Okay, so everything will be squared. So this will be your mean squared error. Okay, that part is clear to everyone. So this, even though this advantage is clear to you, but one thing will there. इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? ये तो एडवांटेज हो गया कि आपका डेरिवेशन आपका पूरे में हो जाएगा. दैट विल बी एडवांटेज ऑफ मीन स्क्वायर एरर. डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? नाउ यू जस्ट टेल मी. अगर मैं इसकी आउटपुट केस में दिक्कत हो जाएगी सर. किस केस में? आउटलायर्स के. ओके, वेरी गुड. के केस में वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एरर और वो रिग्रेशन लाइन को इफेक्ट करेगा ज्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट यू कैन से दिस. अगर मैं इसकी यूनिट पे बात करूं, देन एरर विल बी कम इन द लैक्स स्क्वायर. Okay, every time we are taking the square, so this unit will be squared. Yes. तो आप जो आंसर बताओगे every time this answer will be unit of square. कि आपका अगर 2 लाख का नुकसान है तो आप कहोगे 4 लाख का हुआ है. 4 लाख का हो रहा हो तो 8 लाख का. तो you have to understand कि आपको समझना पड़ेगा, एकदम देख के नहीं बता सकते हो. अच्छा, एक चीज और विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट स्क्वायर्ड एरर? ये दिखती कैसी होगी? अगर मेरे पास ये लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट पे दिखा देता हूँ, so you can understand. Okay, so some error is there, some error is there, some error is there, and some error is there. So squared error कर रहा हूँ. So what is something it is making the square? What you are doing, आप हमेशा क्या कर रहे होते हो कि ये स्क्वायर बन रहे होते हैं इस तरीके से. इन स्क्वायर में सबसे कम वैल्यू जिसकी आएगी, ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया को कम कर रहे होते हो. ठीक है, द स्क्वायर एरर विल बी लुक लाइक दिस. यस, एवरीवन इज ओके विद दिस? ये आपकी एरर है. आप सोचो. यस, नाउ यू थिंक इफ द सिस्टम हैज सम मोर आउटलायर्स. एक आउटलायर यहाँ पे है. ओके, नाउ यू जस्ट मेक ए स्क्वायर. द एरर विल बी लुक लाइक दिस. ये एरर इतनी बड़ी हो गई. In the MAE absolute error, the error will be localized this only when we are squaring this. अगर ऐसे ही मेरे पास 5 आउटलायर हैं. Now you just tell me when I am dealing with the, अगर मेरे डेटाबेस में more outlier हैं, then we should go for which error? You should go for the MAE absolute error, not for the squared error. Yes, everyone is clear on this? Yeah. Yes, very good, very good. अच्छा, इसके थर्ड वाला जो और आसान हो जाएगा. अभी आपने देखा RMSE. So what should be the answer of this MAE? तो आपने देख लिया है. तो RMSE को, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं. सॉरी, इसको that is the I is equal to 1 to n. अगर इसको एक टर्म में लिखना है, that is the yi minus y cap I square. और इसको अगर इसको मीन करना है तो 1/n से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ. ओके, सो यू कैन राइट दिस इज द MSE. ओके, नाउ अभी आपने देखा कि यूनिट यहाँ पे आपकी क्या है? यूनिट आपकी स्क्वायर्ड में आ रही है. अगर इस यूनिट को अगेन मुझे यूनिट स्क्वायर को यूनिट में चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा? जल्दी से बताओ. यूनिट स्क्वायर को अगर मुझे केवल root over. yes, if you will take the root of MSE का अगर आप रूट ले लोगे, then you can say this is the root mean square error. मीन स्क्वायर एरर यहाँ पे है और उसका रूट ले रहे हो. सो यू कैन राइट दिस थिंग लाइक y is equal to 1 to n and this is your y minus yi minus y cap, okay, whole square, and this is 1 upon n. So again वो यूनिट को सेम करने के लिए, और दूसरा अगेन दिस इज द डिफरेंशिएबल. RMSE and the MSE is differentiable at every point, क्योंकि इसका स्क्वायर जब बनाओगे तो सम पैराबोला आएगा, स्क्वायर्ड है. Okay, every time this will come, so this is differentiable at every point. That's why most of the time when we are using this error, you will use this type of error. अब इसकी यूनिट को सेम करने के लिए you can take RMSE. ये भी differentiable at every point है. ओके, और कहीं ना कहीं कुछ आउटलायर्स के साथ प्ले अच्छा करेगी देन द MSE. सो मोस्ट ऑफ द टाइम you are not using the MSE, you will use the RMSE, root mean square error. Is it okay? Everyone is okay on this point? Sir.
Yes, Clear? sir. Advantage or disadvantage, why we are going for the different type of evaluations, that part should be clear to everyone. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now I am coming to R2 score. कितने लोगों को ये पता है R2 score? किसी को पता है? Okay, same I am taking the example. अभी मैंने CGPI मैंने अभी ये लिया था एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपका प्लेसमेंट का लिया था लैक्स का. जब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास अगर CGPI नहीं था तो आपने क्या आंसर दिया कि सर आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसमेंट का मीन के थ्रू मैं आंसर दे सकता हूँ. सो फर्स्ट Mean सम average. डेटा, यस, इफ यू हैव सम डेटा, ओके, एंड यू हैव नो आइडिया कि इसको कैसे डील करूं, तो फर्स्ट आंसर आपका हमेशा क्या होता है, दैट इज मीन. दैट विल बी मीन. यस, यस और नो? ओके, सो फर्स्ट आपने ये मीन निकाल लिया. ये भी तो एक लाइन की इक्वेशन है, दैट इज ऑल्सो ए लाइन इक्वेशन. y इज इक्वल टू mx प्लस c निकल के आ रहा है, सम मीन की जो भी लाइन की इक्वेशन होगी. ओके, देन आपके पास CGPI आया और आपने कुछ ये डेटा है आपके पास, आपने सम रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करने की कोशिश की. दिस इज द रिग्रेशन लाइन. यस, ये रिग्रेशन लाइन आपकी निकल के आई. ये मीन लाइन है और ये रिग्रेशन लाइन है. नाउ जब मीन लाइन की बात मैं कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मीन लाइन जब हमारे पास CGPA नहीं है तो हमारे पास एक रफली आइडिया दे रहा है, और मीन से अगर ये पॉइंट दूर हैं, ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है, ज्यादा एरर दे रहा है, तो ये लाइन को हम बस इसीलिए ड्रॉ करते हैं. रिग्रेशन लाइन से हम लोग ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि जो मीन लाइन है उससे जो मैं रिग्रेशन लाइन निकाल के लाया हूं वो कितना अच्छी है. ओके, मीन्स हाँ, यू कैन से कि मीन मेरा खराब ऑप्शन था, ठीक है, तो उसके जो कोफिशिएंट्स निकल के आएंगे, रिग्रेशन लाइन के कोफिशिएंट्स उससे ज्यादा अच्छे निकल के आने चाहिए. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीन लाइन टू द रिग्रेशन लाइन, दैट स्कोर विल बी योर R2 स्कोर. और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका रहता है, दैट इज R2 इज इक्वल टू, यू कैन से 1 माइनस, दैट इज SSR, दैट इज सम ऑफ, और मैं यहां पे लिखता हूं SSM लिख देता हूं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन लाइन. ओके, एंड दिस SMM कोई बताएगा क्या होगा, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ऑफ मीन रिग्रेशन लाइन, यू कैन से, और ऑफ मीन लाइन कह सकते हो इसको. दिस इज द मीन लाइन. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग इन द R2 स्कोर, कि मैंने एक मीन लाइन बनाई है, उससे मेरी जो रिग्रेशन की लाइन है वो कितनी अच्छी निकल के आ रही है. यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग. अगर इसको मैथमेटिकली दिखाऊं, दिस R2 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो डायरेक्टली यू कैन से दिस इज योर yi माइनस y कैप. ये एरर है आपका, इसको लिख देता हूं रिग्रेशन लाइन का एरर. ओके, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, तो लिख ही सकते हो. इसको लिखूंगा yi माइनस yi कैप square, this is the mean thing. Okay, this is again the summation of y is equal to y to n. So this is the formula. अब चलो यहाँ पे इंट्यूशंस आपको देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो ये तो हो गया, ये तो आपने मैथमेटिकल पढ़ लिया है, तो इससे कुछ आपको समझ आया हो, कुछ नहीं आया होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, मुझे बताओ कि R2 की वैल्यू 0 कब होगी. मैं 3 वैल्यू पे बात करता हूँ, चलो पहले 0 और 1 पे बात करता हूँ. ये 0 वैल्यू कब होगी, कोई मुझे बताओ इस फॉर्मूला को देख के. इस फॉर्मूला से देख के मुझे इंट्यूशन बताओ, व्हेन यू आर गेटिंग द R2 इज 0. अच्छा, ये 1 लिखा हुआ है, तो जब इससे बोथ लाइन ओवरलैप कर जाएंगे. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप. ये सोचो पहले कि ये R2 0 कैसे आएगा. सर ये 1 है, इसमें से अगर 1 को माइनस करता हूं तो आपका ये आंसर आना चाहिए. यस, उस टाइम पे 1 कैसे आएगा, ऊपर का ये पार्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, उस टाइम पे आपका क्या आंसर आना चाहिए, 1 आएगा. यस, एवरीवन इज विद मी. तो उस सिचुएशन में हो क्या रहा होगा, डेटा आपका कैसा भी रहा हो, डेटा आपका कैसा भी रहा हो, अगर मीन लाइन ये है तो रिग्रेशन लाइन भी आपकी इसके ऊपर लाई कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है. यस, उस टाइम पे आपका आंसर क्या आ रहा है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन आपका एक तरीका होता है, कि सबसे खराब तरीका ये समझ लो रिग्रेशन का क्या है, आप मीन बता दो. अगर उस टाइम R2 की सिचुएशन भी यही है कि मीन और रिग्रेशन लाइन सेम ही है,
तो आपका आंसर 0 आएगा। तो मींस जो मीन लाइन है वही आपकी रिग्रेशन लाइन है। दैट पार्ट इज क्लियर? यस यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब सेकंड चीज पूछता हूं, इसका आंसर 1 कब आएगा? बताओ। बताओ। तो इस पर तो 0 होना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। नहीं, वही मुझे जानना है। अब तो आप समझ गए हो कि सर, एक चीज आप समझ गए हो सर, अगर ये वैल्यू 1 में से जाना है और इस वैल्यू का आंसर अगर 0 आ जाए, देन द आंसर विल बी 1। ये 0 कैसे होगा, मुझे कोई बताओ। ये 0 कैसे हो रहा होगा? टेक्निकली तो जैसे ये नीचे वाला पार्ट इंफिनिटी हो, लेकिन इंफिनिटी कैसे होगा? यस, देखो अभी मैं समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ की वैल्यू मैं कुछ भी रख लूँ, ठीक है, मैं यहाँ की वैल्यू 1000 रख लूँ, 2000 रख लूँ, 50,000 रख लूँ, कुछ भी रख दूँ, अगर यहाँ की वैल्यू 0 है एवरी टाइम, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ हाँ, तो भी यस सर। यस। तो इस सिचुएशन में मुझे बताओ, अगर yi इज इक्वल टू yi कैप हो जाए, देन एवरीथिंग इज 0। अगर ये वाला पार्ट 0 है, मींस क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास जो जो एरर है वो आपकी 0 है, ये माइनस ये आपका 0 आ रहा है, मींस जो भी लाइन है वो सभी पॉइंट से होके निकल रही है। यस, एरर ही नहीं है कोई। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, इस इंट्यूशन से अच्छा। आप लोगों को एक चीज समझ आई कि अगर मैं सिस्टम में R2 वैल्यू निकाल रहा हूँ इवैल्यूएशन को, तो R2 की वैल्यू मेरी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सोच के बताना। मतलब 0 से 1 के बीच में है मेरी वैल्यू, तो 1 के करीब होनी चाहिए या 1 से कम होनी चाहिए? 1 का तो मतलब आप समझ गए ना कि 1 का मतलब क्या होगा, कि वो सभी पॉइंट से जा रही है। नजदीक होना, हाँ, किसके 1 के नजदीक होना चाहिए। 1 बिल्कुल के नजदीक अप्रोक्सीमेट। बिल्कुल। तो हमेशा Towards याद 1 रखना, होना चाहिए। यस, टुवर्ड्स 1 होना चाहिए। तो इफ यू आर डीलिंग विद द R2 स्कोर, तो R2 स्कोर देख के आपको क्या समझ में, इफ इट इज टुवर्ड्स 1 देन योर मॉडल इज डूइंग गुड, अदरवाइज इट इज टुवर्ड्स 0, तो इसमें एरर ज्यादा आने की संभावना है, ज्यादा आ रहा है। यस, दैट पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, एंड वन थिंग Yes, इज sir. दैट, यस, एंड वन मोर थिंग इज दैट, कहीं कहीं देखोगे सिचुएशन, कहीं सिचुएशन देखोगे कि समटाइम्स यू विल फाइंड दिस R2 स्कोर इज नेगेटिव। व्हाट इज दैट सिचुएशन? और ये निकलता भी है, आप जब डेटा में कभी कभी एक स्कोर निकालोगे, देन यू विल फाइंड दिस स्कोर इज नेगेटिव। व्हाट इज दैट सिचुएशन, मुझे बताओ, ये कब आ सकती है? कोई सोच के बताओ जल्दी से। When sir, this part is negative, y1 Which this one? one y minus yi minus y cap, this Yes. whole value when it is negative, then and greater than this one minus Yes. greater than value, then we get negative value. Okay. So what you are saying, I think you are saying this part will be greater than 1. Yes? Then the value will be negative. Greater than 1. Then this part is greater than 1. Then you can say, sir, this will be negative. Yes, you are trying to say this part. So what that situation, एक बार represent करके बताता हूँ कि मीन तो आपका ये है, एंड मीन आपका ये है, एंड यू आर फाइंडिंग दिस लाइन, दिस रिग्रेशन लाइन. Okay, this is the regression line, this is the mean line. In that situation, if you will see, then you will find कि आपका ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू तो आपकी कम है, स्मॉल है, और ये वैल्यू आपकी बहुत लार्ज हो गई, तो आपकी 1 से ज्यादा ऊपर निकल जाएगी। अगर 1 से ऊपर निकल गई तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस। तो ये एरर बहुत ज्यादा हो गई ना, एरर ही तो फाइंड आउट कर रहे हो, एरर बहुत ज्यादा हो गई, इस मीन की एरर तो कम है, तो ये 1 से ऊपर अगर निकल गया, इन दैट सिचुएशन यू कैन गो फॉर द नेगेटिव। और इस तरीके का अगर मॉडल आप बना रहे हो तो अब भगवान मालिक है। ओके, मीन्स इसका भी एक मीन है, एक बताऊं, व्हेन यू आर डीलिंग द नॉन लीनियर डेटा। ओके, नॉन लीनियर डेटा आपको मिला एंड आपने लीनियर रिग्रेशन लगा दिया, तो सम टाइम दिस नेगेटिव R2 विल कम, कि वो उस नॉन लीनियर डेटा को समझ ही नहीं पाता और R2 की वैल्यू आपको नेगेटिव आ जाती है। ओके, सो दिस सिचुएशन मे बी अकर, तो वहां आपको समझना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग टोटली रॉन्ग, तो मॉडल से तो कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। यस,
एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पॉइंट? व्हाट इज द मीन्स ऑफ R2 भूलोगे तो नहीं, क्योंकि मोस्टली R2 पता होता है, फॉर्मूला पता होता है, बट व्हाट इज R2 डूइंग, दैट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, एक छोटा सा और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे करके चले जाओ, नहीं तो फिर कहोगे मैं छोड़ देता। आप लोग, मुझे पता है कि एक क्लास इससे पहले भी हुई है, तो पूरे तड़प जाते हो भागने के लिए लेकिन लास्ट में फिनिश कर रहा हूँ यहीं पे। वैसे मेरा मूड था कि मैं आपको मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों पढ़ा दूं, बट अभी मुझे चेहरे सामने भी मेरे बच्चे बैठे हैं, तो वो उनके दिख रहे हैं मुझे कि बिल्कुल मूड में नहीं है। चलो एक छोटा सा एडजस्टेड को बता के मैं खत्म करता हूँ। सो इसका फॉर्मूले से ही आपको समझा दूंगा कि R2 एडजस्टेड की जो वैल्यू होती है, अब ये रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा सब, लेकिन एनीवेज ठीक है, 1 माइनस R2 वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाता है n-1 अपॉन दिस इज n-1 माइनस k। अब एक एक को पॉइंट को मैं बता दूं क्या है, बस इंट्यूशन बता दूंगा। दिस n इज द नंबर ऑफ रो, ठीक है, रोज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। k हमारा हो जाता है यहाँ पे, k इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर इनपुट्स हो जाते हैं। अभी इसके बारे में बताता हूँ क्या चीज है एक्चुअली, वेरिएबल्स एंड कोई R2 वैल्यू, तो आप जानते हो R2 वैल्यू हमारी क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास CGPA का डेटा था एंड आपके पास इसका पैकेज का था। अब मैं यहाँ कहूँ कि ये बच्चा है, इसमें टेम्परेचर बच्चे का क्या था जब इंटरव्यू देने गया, तो इज इट दिस फीचर इज रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट, मुझे बताओ। नॉट रिलेवेंट। मे बी अगर यहाँ पे एक और फीचर ले लेता हूं मैं, एक फीचर ऐसा लेता हूं कि CGPA इतना है और उसकी 12th में मार्क्स इतने हैं, तो इज दिस रिलेवेंट? मे बी इट इज रिलेवेंट, या मे बी इट इज रिलेवेंट। 12th में मार्क्स तो उसके रिलेवेंट हो सकते हैं, 10th-12th के मार्क्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट यू आर टेकिंग कि टेम्परेचर उसका बॉडी का क्या था उस टाइम पे, या फिर उस दिन बारिश हो रही थी, या फिर उस दिन बारिश हो रही थी नहीं हो रही थी, वॉट, या फिर और ऐसा कोई इररिलेवेंट फीचर्स जो इसके CGPA पे फर्क नहीं डाल रहा, अगर वो इंट्रोड्यूस होता है देन व्हाट विल हैपन। अगर मैं टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करूंगा तो इसके R2 स्कोर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस आपने एक फीचर बढ़ा तो दिया, x था पहले, ये x2 कर दिया, एक फीचर बढ़ा दिया, मींस ये वाली वैल्यू तो आपने बढ़ाई है। देखो n फिक्स है, नंबर ऑफ रोज फिक्स थे, k की वैल्यू आपने बढ़ा दी, ठीक है, यस, ये फिक्स है। ये भी आपका, अगर कोई इररिलेवेंट आप फीचर बढ़ाते हो, या तो R2 स्कोर कम होता है या R2 स्कोर कांस्टेंट रहता है। तो मैं पहले कह रहा हूं R2 स्कोर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ऊपर का टर्म पूरा कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, यस। k की वैल्यू आपने बढ़ाई है, वो माइनस में है, तो ये आपकी टोटल वैल्यू क्या होगी, माइनस, ये बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, यस। ये मान लो 10 है, ये आपका पहले -1 था, यहाँ पे पहले -1 था k की वैल्यू, अब आपका 2 हो गया मान लिया, ओके, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म था। अब मुझे बताओ, कांस्टेंट अपॉन पहले आपका डिवाइड बाई 9 हो रहा है और अभी कांस्टेंट डिवाइड बाई 10 हो रहा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? प्लीज, इतना मैथमेटिक्स आई बिलीव कि आता है आपको, बताओ प्लीज, इन दोनों में किसकी फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी? फर्स्ट वन का ज्यादा आएगा। हाँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे 99 कर देता हूँ, मान लो, तो पहले की वैल्यू कितनी आ रही है, 11, और यहाँ भी 99 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 point. सॉरी यहाँ पे 9. ये 11 ही आएगी, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कितना आएगी, ये कितनी 9 आएगी, 9.9. 9.9। ओके, तो फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ओके। अब देखो, अगर मेरा यहाँ पे जब बढ़ा था ये वाला पार्ट, तो क्या हुआ था, यहाँ की वैल्यू क्या कम हो गई थी, टोटल वैल्यू, है ना, यहाँ मैंने बढ़ाया तो यहाँ 7 रह गया मान लिया, तो टोटल वैल्यू कम हुई, तो टोटल ये वाली वैल्यू आपकी क्या हुई, बढ़ गई, ये इंक्रीज कर गई, और इंक्रीज वैल्यू को 1 में से माइनस करता हूं तो R2 हमारा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। कहने का मतलब मेरा ये है केवल, इफ यू आर पुटिंग द इररिलेवेंट feature in the system, then what will happen, R2 value will decrease, yes. So sometimes we will use this formula to adjust the R2 value कि उसमें कोई irrelevant features तो नहीं है,
सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड कि R2 वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो वी हैव टू चेक कि इररिलेवेंट फीचर आ रहा है, उसको हमें हटाना होगा. यस, तो दैट इज द थिंग. अगर इसी को चीज को मैं दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट अभी आपके दिमाग में इतना रखिए कि यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड इररिलेवेंट फीचर्स को आप लोग हटा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड R2. यस, सो दीज आर द इवैल्यूएशन पॉलिसीज एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, यू अंडरस्टैंड आई बिलीव. अब मुझे नहीं पता, आप चेक करना दोबारा रिकॉर्डिंग एंड अदर थिंग कि जहां पे आपको डाउट हो यू कैन आस्क. मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, बताओ आप लोग, कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? रहने दीजिए सर. No, sir. Okay. Okay. So now I am stopping the recording. Okay. Wait. Okay. Again, I am believing that